Good morning, student. I am Rizwan in lockdown classes from Moria Senior Secondary School of class 9. Student, we have already discussed many terminology related this chapter, motion. So we will start today acceleration. Okay, acceleration. Before acceleration, we will discuss first of all instantaneous velocity. So what is instantaneous velocity? This means when a body travels distance in very small times. Very small times, it means times tend to 0, but not equal to 0. मतलब टाइम इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना कम में अगर कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसका कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो, when a body is moving in a straight path and from this position whose velocity is v1 and after some time the position changes but its instantaneous velocity does not change. It means v1 is there, also here v1. It means body does not change their instantaneous velocity at a different positions, such as this one is A point, this is B, and this is C. So all three positions body does not changes its instantaneous velocity. So it is called uniform velocity. Uniform velocity. But a body which is moving in a straight path, and if its instantaneous velocity changes at a different position, then it's said to be non-uniform velocity. Suppose this position instantaneous velocity of body is v1, this position it changes v2, and this position v3. So body always changes instantaneous velocity at a different position. So it is called non-uniform velocity. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं। ओके, सपोज ए बॉडी which is moving in a straight path and its instantaneous velocity is given. After some time, its instantaneous velocity becomes v2, and during it takes t second. Okay, and in t second it displaces x distance. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पोजीशन पे a, पोजीशन पे v1 और b पोजीशन पे अगर v2 है, और इस दरमियान वो जो भी टाइम लगा वो t सेकेंड, और इस t सेकेंड में वो अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v2 माइनस v1. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. ये वेलोसिटी में चेंजिंग है. अच्छा, लेकिन रेट ऑफ चेंज की बात हम लोग करेंगे. रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज मीन्स रेट का मतलब ये होता है कि पर यूनिट क्वांटिटीज को हम लोग रेट से, तो अगर इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज
देखेंगे तो दो तरह से दिखेगा, रेट ऑफ चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज इन रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी हियर, लुक एट if we take change in velocity with respect to time, if velocity changes in respect to time, v2 minus rate of change, rate of change with respect to time। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या किस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि इन टी सेकेंड बॉडी चेंजेस its velocity v2 minus v1 in 1 second। the body changes its velocity v2 minus v1 by t। now if the rate of change with respect to displacement is rate of change with respect to distance, what will be, suppose इसे है तो यहाँ पे देखेंगे कि इन x distance body change its velocity v2 minus v1 in 1 meter, body changes the velocity v2 minus v1 by x। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा कि हम द रेट ऑफ चेंज जो निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज वो दो तरह से, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जनरली जो यूज होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ वेलोसिटी जो लिया जाता है हम उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। इसके लिए एक वर्ड यूज हो गया द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन कुछ ऐसे कहेंगे, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन velocity of body is called acceleration। ओके अच्छा, अब चूंकि ये इसके रेट ऑफ चेंज को मेजर किया जा सकता है, इसलिए हम इसको फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज ये है तो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है। तो चूंकि वेलोसिटी का डिफरेंस है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की बात होती है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज की जो होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब एक्सेलरेशन जो है, एक्सीलरेशन is a vector quantity। ओके, अब इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट is a unit of acceleration। क्या हुआ, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन बराबर, अगर उसको एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर हम कहें
कि डिफरेंस इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 बाई 3। तो जरा समझ लेते हैं कि इन दोनों का जो v2 माइनस v1 का जो डिफरेंस आएगा वो, चूंकि इसका SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंस भी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड। और चूंकि टाइम का भी यूनिट होता है सेकेंड, तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाए, 1 इसके नीचे होता है तो 1 ऊपर जाएगा और इसके नीचे हो गया। तो इसका मतलब m बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है m, और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड ऊपर आएगा तो इसका होगा नेगेटिव पावर आ जाएगा, तो सेकेंड माइनस 2। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर जिस दिन आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो हम उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा? तो एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस होगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव आएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो अगर नेगेटिव आएगा तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन। और इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव, तो इसको वर्ड हम यूज करेंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो जब इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी तो उस समय पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो उस समय वो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो उस समय हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझना है कि रिटार्डेशन जब हम लिख लेते हैं रिटार्डेशन, तो इसके साथ नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव वी नेवर यूज नेगेटिव हम लोग यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन खुद अपने आप में एक नेगेटिव ही हम सेंस में लेते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन, अगर हम बोले कि रिटार्डेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड रिटार्डेशन आप यूज कर रहे हो तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आप लिखेंगे रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन जब हम यूज करेंगे वर्ड तो पॉजिटिव लगाना है, लेकिन जब आप रिटार्डेशन यूज नहीं कर रहे हो और नेगेटिव, तब वहां पे नेगेटिव लेगा। तो रिटार्डेशन भी लगाओगे नेगेटिव भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जब आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड रखोगे, और अगर वो नेगेटिव आपने अगर वो रिटार्डेशन आप नहीं लिख रहे हो तब नेगेटिव लगाना, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके बच्चे, अब इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, और हम इस कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इनको हम लोग ग्राफ के ऊपर देखेंगे कि ग्राफ में कैसे ये रिप्रेजेंट होते हैं। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनेगा या डिस्टेंस टाइम का, पोजीशन टाइम का, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वो कैसे हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अब ग्राफ की जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी उसके पहले आप लोग इसमें इसके डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, और इसमें जो भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे इसके ऊपर आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप हमको मैसेज करेंगे,
मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज कर देंगे क्वेश्चन को और हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके, बाय।